Okay, so let's just start this session. Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing okay. I welcome you all to day 3 of Android Development Bootcamp, which is actually an 8 days development on Android, and it's a bootcamp actually. It's a complete course in general for the participants who didn't know already. So today is Android App Code Mediator. Buckle up, boys and girls. We're about to launch. Okay, so before starting off with the further session, let me give you a quick reminder yet again in the start of the session. Only those who RSVP for the event will be included in this quiz, and else nobody else will, right? So the link of the quiz will be given at the end of the webinar. Quiz questions complete session se hote hain, so please be attentive, pay attention to even the minute details of the details that the speaker is sharing. The chat is open for your questions. You can drop your questions anytime. And there is a special request for you guys. So if you guys are like joining as participants, do take screenshots of the events. आप लोग कुछ भी description लिख दें, screenshots ले लें from any of the event के sections में से, and then put it on your social media, tag DSC and tag DSC Mute, and then we'll just repost your stories and appreciate you more so that more people can get to know that something is happening in DSC Mute. So yeah, do start posting your stories and share it with your people and friends. Okay, so some of you all have already given us really amazing responses, feedback, even speakers के बारे में. So we are really glad to help you guys with it. So the host for this event, without any further ado, is Maha Ihsam. Maha is from Software Engineering Department as a rising junior. She has also worked as a member in Software Engineering Society and have been volunteering and managing team in different events. She's also a director learner at Developer Student Clubs, Mehran University of Engineering in Jamshoro, Engineering and Technology Jamshoro chapter. Hi Maha, welcome. You can take over now. Thank you so much, Fatma, for such a sweet introduction. Assalamu alaikum, everyone. So let's introduce our speaker for today, Mr. Waqar Ali Syal. He is our speaker for day 3 of Android Bootcamp, that is Android App Code Moderator. Mr. Waqar Ali Syal is yet another Android developer from the software department at Mute as a rising junior. So he is also a freelancer and codes in Python and other languages too, with the skill of technical writing. He is serving as a Microsoft Learner Student Ambassador from Mute too. So now, Vakar, you can take over now. Thank you. Hello, Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, we can. Okay, तो introduction तो मेरा हो ही चुका है, तो I think we should start now. तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई हैं, क्योंकि ये आप पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, डिज़ाइन पढ़ चुके हैं, और ये एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं. तो इसका मैं पहले आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बना के रखी हैं, उसके बाद जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं हम उस पर आएंगे. तो मैंने बेसिकली 2 एक्टिविटीज़ क्रिएट की हैं यहाँ पे. एक हमारे पास मेन एक्टिविटी है और एक ये सेकंड एक्टिविटी के नाम से मैंने बनाई हुई. तो इसमें मैंने आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही एक्चुअली. आप श्योर ही है? No, not still. मैंने तो यहाँ से शेयर कर दी है. Okay, now it's visible. And yeah, please do speak in English as because don't mix, so it will. Okay, so you have already learned how to design activity in XML file. So I have already implemented here. So I used here relative layout as the name says. It arranged the views relative to each other or relative to the activity. So यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपने लर्न की होंगी इससे पिछले सेशन में. टेक्स्ट साइज हो गया, जैसे स्टाइल हो गया, तो इन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे. सिर्फ मैं आपको रिलेटिव लेआउट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ.
तो ये कंपोनेंट्स को व्यूज को रिलेटिव टू ईच अदर प्लेस करता है। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है लूप एग्जाम्पल, उसके नीचे मैंने एक और टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है जो फिलहाल विजिबल नहीं है। इसमें हम जब टेक्स्ट सेट करेंगे तो ये विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी बिलो की, जिसमें मैंने लिखा हुआ है लूप एग्जाम्पल टाइटल, जो मैंने इसको आईडी लिखी हुई है। तो ये बिलो होगा इस टेक्स्ट व्यू के। इस तरीके से हम व्यूज़ को प्लेस करते हैं रिलेटिव टू ईच अदर। इसी तरीके से ये बटन्स जो हैं इन सब के बिलो में प्लेस किए हुए हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एक्टिविटी होती है, एक और लेआउट होता है लीनियर लेआउट। अब वो क्या करता है, इट प्लेसेस द व्यूज इन अ रो और इन अ कॉलम। अब जो जावा के बैकग्राउंड से हैं वो ये जानते होंगे लीनियर लेआउट के बारे में, कि यहाँ तो वो व्यूज़ को रो में अरेंज करता है, यहाँ कॉलम में। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, ओरिएंटेशन वर्टिकल की हुई है। तो यहाँ पे मुझे वो बिलो वाली प्रॉपर्टी देने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं एक नया व्यू ऐड करूँगा वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगा। फिर एक और व्यू ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखूँगा तो ये रो में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसकी डिज़ाइन बनाई हुई है। तो अब हम चलते हैं आप आज के टॉपिक्स की तरफ। तो आज के टॉपिक्स हमारे पास हैं लूप, टोस्ट और वर्बोस एंड लोकेट के बारे में हम पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट इंटेंट और परमिशन। तो सबसे पहले व्हाट आर लूप्स? लूपिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज अ फीचर which facilitates the execution of a set of instructions functions repeatedly while some condition evaluates to true. Java provides 3 ways for executing the loops. While all the ways provide similar basic functionality, they differ in their syntax and condition checking time. तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई कोड है और आप वो चाहते हो कि रिपीटेडली वो परफॉर्म हो, तो आप वो कोड जो सेम आपने लिखा हुआ है आप नहीं चाहोगे कि आप उसको बार बार लिखें। तो आप लूप के ज़रिए उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यही काम होता है लूप्स में। और उसमें हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। तो अब इन लूप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले है वाइल लूप। अ वाइल लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउस code to be executed repeatedly based on a given boolean condition. The while loop can be thought of as a repeating if statement. अब while loop में हम क्या करते हैं, पहले मैं इसका सिंटेक्स आपको दिखा देता हूँ। while, फिर हम पैरेंथेसिस में इसकी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और फिर यहाँ पे लूप स्टेटमेंट्स। तो जब तक कंडीशन ये ट्रू है ये while loop एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिपीटेडली इफ स्टेटमेंट्स हैं। अब वो कैसे कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है, एक कंडीशन लेता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कोड चल जाएगा, लेकिन वो कोड चलता है सिर्फ एक बार। अगर वाइल में कंडीशन ट्रू है तो जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट्स आपके पास एग्जीक्यूट होती रहेंगी। इसके बाद है हमारे पास फॉर लूप। The for loop is used when we want to execute block of code non-time. The for loop takes a variable as iterator and assign it with an initial value and iterate through the loop body as long as the test condition is true. तो इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फॉर लूप में पैरेंथेसिस के अंदर होती है इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे हम वो एक वेरिएबल बनाते हैं और फिर हम एक कंडीशन पास करते हैं अदर, और फिर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं। तो जहाँ से हम अपना लूप स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वहाँ से वो शुरू होता है। फिर जब तक कंडीशन हमारे पास ट्रू रहती है तो वो लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। और ये लूप ज़्यादा किस तरीके से काम करता है जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास होता है डू वाइल लूप। दी डू वाइल लूप फर्स्ट statements and then test the condition for next iteration and executes next only if condition is true. तो ये सिंपल वाइल लूप की तरह होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है एंड देन कंडीशन चेक करता है। अब इसका सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले डू उसकी बॉडी, देन हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो वाइल लूप में देखें पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर लूप स्टेटमेंट्स चलेंगी। डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट्स चलती हैं फिर कंडीशन चेक होती है। तो अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होगी तो एटलीस्ट एक बार ये डू वाइल लूप ज़रूर चलता है, पहले कंडीशन फॉल्स। उसके बाद है हमारे पास टोस्ट। अब ये टोस्ट क्या होता है? आर टोस्ट प्रोवाइड्स सिंपल फीडबैक अबाउट एन ऑपरेशन इन अ स्मॉल पॉपअप।
It only fills the amount of space required for the message and the current activity remains visible and interactive. टॉस ऑटोमेटिकली डिसअपेयर आफ्टर अ टाइम आउट। तो जब भी आप कोई मैसेज देना चाहते हो यूज़र को छोटा सा किसी भी सिंपल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप उसमें टॉस यूज़ करते हो। तो टॉस के बारे में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे और यहाँ पे मैंने 2 लिंक्स भी प्रोवाइड कर दी जिसमें आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं और कस्टम टॉस भी आप बना सकते हैं। और इसके लिए हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, तो वहाँ पे भी आप देख लेंगे कि किस तरीके से टॉस बनता है और वो काम करता है और मैसेज किस तरह शो करवाते हैं हम यूज़र को। Locate and verbose. The locate window in Android Studio displays system messages such as when a garbage collection occurs and messages that you added to your app with the log class. It displays messages in real time and keeps a history so you can view older messages. तो एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास एक लॉकेट विंडो होती है। जब हम ऐप को अपनी रन करें तो उसमें जितने भी इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास एक लॉग क्लास होती है जिसके ज़रिए हम अपने लॉग मैसेजेस उसमें ऐड करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में ऐड करके देखेंगे और उनको लॉकेट विंडो में व्यू भी करेंगे। तो ये बेसिकली उन सारे मैसेजेस को शो करता है ये लॉकेट विंडो। अब ये वर्बोस क्या होता है? वर्बोस मीन्स दैट इट इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट लॉग इन द लॉगिंग टायर, शो ऑल द लॉग मैसेजेस। ओके, तो आसान हो रही है तो वेट कर लेते हैं 2 मिनट। Hello, can you hear me? Yes, Vicar, we can. तो verbose means that it is the least important log in the logging tier, show all the log messages। तो हमें ये सारे log messages शो करता है, लाइक जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हो उसमें एरर्स जो भी हो, डिबगिंग के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी, और वार्निंग्स जितनी भी ऐप में आ रही होती हैं वो सब शो करता है। तो यहाँ पे कुछ लोग के मैसेजेस हैं जो शो हो रहे हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है एरर की,
इसमें सिर्फ एरर और कुछ और मैसेजेस शो हो रहे होते हैं, और log.w जो मेथड है उसमें वार्निंग शो हो रही होती हैं, और इंफॉर्मेशन में जनरल इंफॉर्मेशन जो आप एड करते हो वो शो होती है, और डीबग में रन टाइम में जब आप अपनी ऐप को डीबग कर रहे होते हो तो वो सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं, और फिर हमारे पास नीचे आ जाता है वर्बोस। इसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ये डीबग के लिहाज से इंफॉर्मेशन, वार्निंग, एरर, ये सब जो है वो वर्बोस में ऐड होती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑल लॉग मैसेजेस। तो ये सब लॉग मैसेजेस को शो करता है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि यूज टू लॉग एरर्स, और log.w जो होता है वो यूज टू लॉग वार्निंग्स, और जो .i मेथड होता है वो इंफॉर्मेशन मैसेजेस के लिए। इसी तरीके से ये दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आई थिंक आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज़ें सारी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, वरना फिर एक साथ आपको समझ नहीं आएगा। तो अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अगेन आसान हो रही है, तो आई थिंक वेट करना चाहिए 2 मिनट। ओके, तो ये जो सेशन है ये ज़्यादा जो है कोडिंग रिलेटेड है, तो मे भी थ्योरी में आपको ज़्यादा समझ ना आ रहा हो, लेकिन जब कोड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये आईडीज़ गेट करना भी आपने ऐसे पिछले सेशन में सीखा होगा। हर व्यू की एक यूनिक आईडी होती है और उसको हम गेट करते हैं हमारी एक्टिविटी में। तो यहाँ पे मैंने सब व्यूज़ की आईडी गेट की हुई है, और एक अरे बनाई हुई है फूड लिस्ट के नाम से, जिसमें मेरे पास ये कुछ फूड पड़े हुए हैं। अब हम इनको लूप्स के ज़रिए शो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स हमने देखा था, सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं और उसको हम शुरू करते हैं ज़ीरो से, क्योंकि अगर हमें इस अरे के एलिमेंट्स गेट करने हैं तो इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है, और देन 1, और इसी तरीके से ये चलते रहते हैं। इसमें क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक ये फूड लिस्ट की लेंथ से लेस देन नहीं हो जाता। अब इसकी लेंथ कितनी है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कि इसकी लेंथ 5 है। जब तक i 5 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी, जो भी हम इधर प्रोवाइड करेंगे। ये i प्लस प्लस क्या करेगा, ये सिंपली इसको इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। अब वो कैसे होगा मैं फिर से आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले मैं टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ। अब ये txt फूड लिस्ट क्या है, ये रहा। ये देखिए हमने यहाँ पे आईडी गेट की हुई है शो फूड लिस्ट इस टेक्स्ट व्यू की, जो हमारे पास ये यहाँ पे बना हुआ है। इसमें हम अपने सारे फूड जो है वो शो करेंगे लूप के जरिए इस टेक्स्ट में।
यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आई 0 आया है तो 0 + 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट शो होगी और फिर फ्रूट लिस्ट में हमने आई पास किया हुआ है। आई इस वक्त क्या है हमारे पास 0, तो हमारे पास ये जो बिरयानी है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारे पास ये पूरी लाइन, तो आई इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। दोबारा ये यहाँ पे आई 1 हो गया, कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन फूड लिस्ट डॉट लेंथ है, अब इसकी 5 है तो ये ट्रू है कंडीशन, दोबारा ये लूप चलेगा। फिर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आई हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू होगी तो फिर इंक्रीमेंट होगा। इसी तरीके से ये लूप हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो जब मैं आपको आउटपुट शो करवाऊँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों लिखा है। तो अब अगर हम अगेन एंड अगेन इसको बिल्ड करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में काफ़ी टाइम लगता है रन करने में। तो पहले सारे कोड लिख लेते हैं इन तीनों टॉपिक्स के लिहाज से, फिर हम उसको रन करके चेक करेंगे। इसी तरह मैं व्हाइल लूप भी लिख लेता हूँ सेम कंडीशंस के साथ। व्हाइल लूप में हमें वेरिएबल खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कंडीशन पास करते हैं, लेकिन फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट सब दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बना दिया जे। जब तक ये जे लेस देन रहेगा फूड लिस्ट डॉट लेंथ से, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये लाइन मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा जे। यहाँ पे j+1। तो दोनों का मतलब एक ही है, फॉर लूप भी सेम तरीके से काम करेगा और ये वाइल भी सेम तरीके से काम करेगा, सिर्फ इसके सिंटेक्स में फ़र्क है। इसी तरीके से हम डू वाइल लूप भी लिखेंगे, उसका काम भी सेम ही होगा, सिर्फ सिंटेक्स में फ़र्क होगा और बाकी इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। लाइक डू वाइल लूप में बॉडी जो है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन बाद में चेक होती है, और वाइल में हम सिर्फ कंडीशन देते हैं और फॉर में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट सब दे रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनमें डिफर कर रही होती हैं। अदरवाइज लूप का काम यही होता है रिपीटेडली कोड को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे मैं एक डू वाइल लूप बना लेता हूँ, उसमें मैं बॉडी सेम रखता हूँ। ये भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। हम कंडीशन बाद में देते हैं बॉडी के बाद, तो यहाँ पे के लेस देन रहेगा फूड लिस्ट डॉट लेंथ। हमारे पास तीनों लूप्स हैं, तीनों लूप्स काम एक ही कर रहे हैं, इस txt फूड लिस्ट के अंदर टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। अब वो टेक्स्ट कैसे सेट होगा वो मैं आपको जब रन करके दिखाऊंगा तो वो आपको ज़्यादा समझ आएगा, और उस वक्त मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास होता है टोस्ट। सर जी थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। अब ठीक है। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ अब Yes, ठीक है। Waka. यस ओके। यहाँ पे हम एक टॉस बनाएंगे। टॉस क्लास का एक मेथड होता है डॉट मेक टेक्स्ट, जो कि टॉस बनाता है। उसमें हम पहले कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, एंड आई होप यू ऑल नो के कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि आपने पिछले सेशंस में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये आपके रिसोर्सेज और आपकी क्लासेस जितनी भी होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी में, तो हमारे पास ये मेन एक्टिविटी पास होगी यहाँ पे एज अ कॉन्टेक्स्ट, और फिर टॉस में जो भी आप मैसेज शो करवाना चाहते हो वो आप इसमें देते हो। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ आई एम अ टोस्ट। देन थर्ड आर्गुमेंट आप देते हो इसमें ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपके पास दो होती हैं, एक ये लेंथ
अंडरस्कोर लॉन्ग एंड लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट। लॉन्ग मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा देर के लिए शो होता है और शॉर्ट में कम देर के लिए, तो फिलहाल लॉन्ग रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये टोस्ट शो, फिलहाल ये शो नहीं होगा। अब ये टोस्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जिसमें हमने मैसेज सेट किया आई एम अ टोस्ट और उसकी हमने ड्यूरेशन सेट कर दी है। अब हम यहाँ पे टोस्ट डॉट शो जैसे ही कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही हम अभी मैंने ये क्लिक लिसनर सेट किया हुआ है, ये BTN शो टोस्ट जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे पास ये बटन है, ये वाला जिसकी ID है शो टोस्ट बटन है, और वो मैंने यहाँ पे गेट की हुई है शॉर्ट ऑफ बटन, और उस पर हमने क्लिक लिसनर सेट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछले सेशन में ही पढ़ी थी कि कैसे क्लिक लिसनर सेट करते हैं और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन वगैरह कैसे होती है। तो जैसे ही हम BTN शॉर्ट टोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टोस्ट शो हो जाएगा, और उसके बाद लॉग बटन है हमारे पास, इसकी भी इसी तरीके से ID गेट की हुई है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारे मेथड हैं, ये E एरर के लिए, W वार्निंग के लिए, I इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप यहाँ पे कोई भी मैसेज यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी ऐप में कोई एरर है जैसे उसको शो करवाना है लॉग कैट में तो आप E यूज़ करोगे, या कोई वार्निंग है उसको शो करवाना है तो आप W यूज़ करोगे। तो फिलहाल हम E यूज़ कर लेते हैं या D यूज़ कर लेते हैं, D डिबग के लिए होता है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें पास करते हैं, एक आपका टैग जिससे आप अपने मैसेज को पहचानोगे, लाइक जैसे की वैल्यू पेयर होता है ना, तो की के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यू को, उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं की रख लेता हूँ माई मैसेज और वैल्यू रख लेता हूँ लॉग मैसेज। तो जब भी हम लॉक बटन को क्लिक करेंगे, जो हमारे पास ये वाला बटन है, हमारे पास लॉग कैट में एक लॉग शो हो जाएगा जिसमें ये मैसेज लिखा होगा। इसी तरीके से हम एक और लिख लेते हैं यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे हम वी लिख लेते हैं वर्बोस जो होता है, और यहाँ पे की लेते हैं माई सेकंड मैसेज, आई एम अनदर मैसेज। तो ये दो लॉग्स हमारे पास लॉग कैट में शो हो जाएंगे। तो इनका यूज़ क्या होता है? अब ये यूज़ इस तरीके से होते हैं, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपके पास कुछ एरर्स आ रहे होते हैं या आपको डीबग करना होता है ऐप को, यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे आप शो कर रहे हो, तो आप वो इन लॉग्स के ज़रिए शो करते हो ताकि आपको पता चले कि किस जगह पे क्या हो रहा है। ये जब आप अपनी ऐप को रिलीज़ करते हो या हम प्रोडक्शन मोड में लेके जाते हो तो तब आपको ये सारे लॉग रिमूव करने होते हैं, क्योंकि इनका एप्लीकेशन में कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, मैसेजेस को शो करने के लिए या फिर देखने के लिए होते हैं। उसके बाद ये शो नेक्स्ट एक्टिविटी सिंपल हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले जाएगी। ये तो आपने किया हुआ है स्टार्ट एक्टिविटी, उसमें हम एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, एंड सेकेंड एक्टिविटी हम जिसमें भी जाना होता है वो एक्टिविटी यहाँ पे पास करते हैं, तो वहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ें मतलब पिछले टॉपिक से रिलेटेड है वो सारी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखी हुई है ताकि आज जो है हम आज वाले टॉपिक्स पे फोकस कर सकें। तो अब इसको रन करके हम चेक करते हैं। इन तीनों लूप्स का काम जो है वो एक ही है, टेक्स्ट को सेट करना, और मैं अगेन एंड अगेन करूँगा तो इसमें इशू आ सकता है। तो और हम बार बार रन करके भी चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिर टाइम लगेगा। तो हम एक लूप के ज़रिए देख लेते हैं, बाकी इनका सिंटेक्स यहाँ पे रहेगा, ये मैं आपको कोड आपको मिल जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पे ये बिल्ड हो रही है, एक बार ये बिल्ड हो जाए तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर ऑफ करके मोबाइल से आपको दिखा दूँगा।
तो आपको मोबाइल की स्क्रीन जब शो हो जाए तो आप बताइएगा। तो शो हो रही है आपको स्क्रीन? जी वकार। तो यहाँ पे टेस्ट ऐप के नाम से ये हो गई। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने लाइन को चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे अब इस कोड को भी अब मैं कोड तो दिखा नहीं सकता। यहाँ पे अब आउटपुट देख लें, फिर मैं आपको उस हिसाब से फिर कोड में दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये फर्स्ट पे बिरयानी प्रिंट हो रही है, सेकंड पे चिकन रोल हो रही है। सारे फूड इस तरीके से लूप के ज़रिए हमने लाइन बाय लाइन एक्सेस किया हुआ है इनको। और ये शो टोस्ट बटन है, तो हमने ये इसमें टेक्स्ट शो किया था आई एम अ टोस्ट। और अगर मैं यहाँ पे लॉग को क्लिक करता हूँ, ये चीज़ मेरे पास आएगी। तो लॉग किट में अब ये मैं दिखाऊँ कैसे आप लोगों को। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। क्योंकि या तो मैं स्क्रीन लैपटॉप की शेयर कर सकता हूँ या मोबाइल की कर सकता हूँ। तो आपके पास एक स्क्रीनशॉट आया होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे ये शो हो रहे होंगे, डीबग, इन्फो, वान, एरर। और मैंने यहाँ पे डीबग पे जाके की को सर्च किया है, जो मैंने यहाँ पे की रखी हुई है माय मैसेज, उसको मैंने सर्च किया हुआ है। तो उसका मैसेज मुझे शो हुआ हुआ है, आई एम लॉग मैसेज। तो ये कौन कौन देख सकता है ये स्क्रीनशॉट? किसी ने देखा है? तो इसी तरीके से आप अपने लॉग मैसेजेस को व्यू कर सकते हो। तो मेरी इसकी मोबाइल की स्क्रीन शेयर है, तो मैं लैपटॉप की नहीं कर सकता, तभी मैंने आपको ये स्क्रीन सेट कर दिया। तो लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है अब? हेलो? Yes, yes, yes. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हर इवेंट के यहाँ मैसेजेस शो होते जा रहे हैं। और मैंने आपको डिबग वाला भी जब मैंने रन किया था तो आपको दिखा दिया था। और यहाँ पे हमने टॉस शो किया था। अगेन हम रन करेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आप लेता हूँ। यहाँ पे आप इस टॉस की ग्रेविटी भी सेट कर सकते हो। आपने देखा कि टोस्ट हमारे पास नीचे शो हो रहा था बॉटम में,
अब मैंने इसकी ग्रेविटी सेट कर दी है सेंटर में, और ये एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट ये स्क्रीन पे हमारे पास एक्स और वाई की पोजीशन शो करते हैं, तो वो हमें 0 0 ही रखी है। बस ये हमारे पास सेंटर पे ग्रेविटी सेट कर दी और ये टोस्टअप हमें सेंटर पे शो होगा। और उसके अलावा यहाँ पे लाइन भी मैंने चेंज कर दी है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों किया था। सबसे पहले अगर हम इसको निकाल दें यहाँ से, तो यहाँ पे शो होता 0 आया, 0 + 1 1, ये ब्रैकेट, और फुट लिस्ट पे जो फर्स्ट हमारे पास ये बिरयानी है ये शो हो जाती है। देन सेकंड टाइम जब लूप चलता तो ये चिकन रोल हमारे पास यहाँ पे जो है ये इसको ओवरराइट कर लेता, तो हमारे पास जो उससे पहले वाला टेक्स्ट था वो ओवरराइट हो जाता और न्यू टेक्स्ट सेट हो जाता। तो इसलिए हमने इसको अपेंड किया है। यहाँ पे जो पहले वाला टेक्स्ट है उसको गेट करके देन उसके साथ अपेंड करके सेकंड टेक्स्ट ऐड करना है, उसमें हम लाइन चेंज कर देंगे। तो ये सेम काम इसी इन लूप्स में भी होगा, बस सिर्फ सिंटैक्स चेंज है और उसका कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसी तरीके से ये टॉस के बारे में मैंने आपको बताया। टॉस के बारे में ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने लिंक्स डाली हुई हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी ये लॉग मैसेजेस में से हमने डिबग मैसेज और वर्बॉस मैसेज देखा, इसी तरह log.i कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो वार्निंग शो करनी है तो वन के लिए। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने के लिए ये बटन है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी पे काम हो रहा है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे। So what are implicit intent? What is implicit intent? In an implicit intent, you declare a general action to perform. Then Android operating system will filter out component which will respond to the action. A more flexible use of an intent is the implicit intent. You don't specify the exit. अच्छा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये सिर्फ समझा देता हूँ। अब आपने एक्सप्लिसिट इंटेंट पढ़ा था कि आप दो एक्टिविटीज़ के दरमियान किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। तो वहाँ पे आप एक्टिविटी स्पेसिफाई कर रहे होते हो कि किस एक्टिविटी को आप वो डेटा पास कर रहे हो। इम्प्लिसिट इंटेंट में ऐसा नहीं होता। आप एक एक्शन परफॉर्म करते हो, लाइक आप कोई नंबर डायल करना चाहते हो, कैमरा यूज़ करना चाहते हो, या फिर वॉइस रिकॉग्निशन हो गई, इस तरह के जितने भी एक्शंस हैं, या फिर यूआरएल को ओपन करना, ये सब चीज़ें। तो आप सिर्फ एक्शन को डिफाइन करते हो। आपका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, खुद ही उस लिहाज से आपके डिवाइस में जो उससे सूटेबल ऐप होगी या फिर उस एक्टिविटी में कोई कंपोनेंट या किसी और ऐप में कंपोनेंट जो उसको शो कर सकता है वो खुद ही ओपन हो जाएगा। लाइक एक यूआरएल है, आप जब यूआरएल ओपन करोगे तो आपकी एंड्रॉयड को ओएस क्या करेगा, उसको खुद ही आपके ब्राउज़र में ओपन कर लेगा। तो इसमें हम जो रिसीवर कंपोनेंट होते हैं वो डिफाइन नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक्शन को डिफाइन करेंगे और एंड्रॉयड का ओएस खुद ही ये देखेगा कि मुझे इसको किस में खोलना चाहिए। तो इस तरीके से देखें, यहाँ पे ये एग्जांपल है। इम्प्लिसिट इंटेंट की हम रिक्वेस्ट करेंगे, एंड्रॉयड ये डिसाइड करेगा कि ये कैमरा एक्टिविटी से मैच कर रहा है और ये कैमरा ऐप को रन कर लेगा। उसके बाद है परमिशंस। एवरी एंड्रॉयड ऐप रन्स इन अ लिमिटेड एक्सेस सैंडबॉक्स। इफ योर ऐप नीड्स टू यूज रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ इट्स own sandbox, you can declare a permission and set up a permission request that provides this access. तो आपके ऐप के अंदर तो जितनी भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या जो आपके इनसाइड योर ऐप हैं तो वो आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो रिसोर्सेज जो आउटसाइड ऑफ योर ऐप है तो वो आप कैसे एक्सेस करोगे, तो उसके लिए आपको परमिशन मांगनी पड़ती है, यहाँ परमिशंस आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। अब जैसे आप कैमरा यूज़ करने चाहते हो तो आपको एक परमिशन रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, अगर यूज़र्स को एक्सेप्ट करेगा। लाइक आपने तो एंड्रॉयड ऐप जैसे यूज़ करते हो तो किसी ऐप में जैसे आप देखते हो लोकेशन के एक्सेस मांगता है, आप एक्सेप्ट या डिनाई का ऑप्शन आता है तो आप एक्सेप्ट करते हो तो वो उसको एक्सेस कर लेता है, डिनाई कर दोगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यही हमारे पास परमिशंस होती हैं, जो भी चीज़ें आउटसाइड ऑफ योर ऐप हैं उनको यूज़ करने के लिए हम एक परमिशन रिक्वेस्ट करते हैं। उसमें हमारे पास करंट लोकेशन आ जाती है, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, कैमरा परमिशन, ये सारी परमिशन हमारे पास होती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्रॉयड 6.0 API 23 यूजर्स आर नॉट आस्क्ड फॉर परमिशंस एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, rather developers need to request for the permissions at the runtime.
only the permissions that are defined in the manifest file can be requested at runtime. तो एंड्रॉयड 6.0 यानी कि API 23 से लेकर जो डिवाइसेस शुरू होती हैं उनमें हम ये रन टाइम परमिशंस यानी कि ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं परमिशन जो भी हम मैनिफेस्ट फाइल में डिफाइन करते हैं। उससे पहले वाली जो उससे कम जो एंड्रॉयड के वर्जन है उसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपसे वो परमिशन सब पूछता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसमें जो सारे एक्सेस होते हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। वहाँ पे आप रन टाइम परमिशंस यूज़ नहीं कर सकते। तो वही इसकी टाइप्स ऑफ परमिशन, इंस्टॉल टाइम परमिशंस और रन टाइम परमिशंस। इफ द एंड्रॉयड 5.5.1 API 22 और लोअर यानी इस वर्जन से जो लोअर है परमिशन इज रिक्वेस्टेड एट द इंस्टॉलेशन टाइम एट द गूगल प्ले स्टोर। यानी वहाँ पे आपके पास परमिशन आपसे मांगता है, आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो ऐप इंस्टॉल हो जाती है, वरना वो इंस्टॉल नहीं होती। लेकिन जो एंड्रॉयड 6 या उससे अबव वर्जन था उसमें आप इंस्टॉलेशन के बाद रन टाइम पे आपसे परमिशन मांगते हैं कि आप कैमरा यूज़ करना चाहते हो या एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करना चाहते हो तो वो रिक्वेस्ट परमिशन आप रन टाइम पे करोगे। तो अब हम इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और परमिशंस का। तो यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी में मैंने एक एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ है, उसके बाद ओपन पेज नाम से एक बटन है और एक इंटर नंबर और ओपन डायलर के नाम से बटन है और ओपन कैमरा से। तो ये सब इन व्यूज के आईडीज मैंने यहाँ पे गेट की हुई है सेकेंड एक्टिविटी में। अब यहाँ पे हम इनपुट URL जो है वो इस एडिट टेक्स्ट का नाम है, इस आईडी से हमने गेट किया हुआ है इसको, और उसका हम टेक्स्ट एडिटेबल हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। आप अलग से एडिटेबल ऑब्जेक्ट में गेट करके देन टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये एम्प्टी है, अब देखें टॉस का यूज़ यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि किस तरीके से होता है। अब अगर URL एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे टॉस शो कर दूंगा, प्लीज़ एंटर URL। अगर ये यहाँ पे आप देख सको तो मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ तो ये देखें यही यूज़ है टॉस का। छोटे छोटे जो मैसेजेस होते हैं आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिहाज से वो आप टॉस में देते हो। तो यहाँ पे अगर एम्प्टी है तो यूज़र को हम शो करेंगे प्लीज़ एंटर URL, अदरवाइज हम यहाँ पे URL को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इंटेंट यूज़ करने के लिए हम एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इम्प्लिसिट इंटेंट में हमें एक एक्शन डिफाइन करना होता है जो हमें परफॉर्म करना है। तो हमें URL को देखना है तो उसके लिए एक्शन होता है एक्शन अंडरस्कोर व्यू, और हमें यहाँ पे पास करना होगा URI का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम पास कर देंगे URL। अब ये URI जो है ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको रेफर करता है और उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन करता है हमारा नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें सेकंड आर्गुमेंट URI का पास करना होता है, और ये जो डॉट पार्स मेथड है ये किसी किस्म की पार्सिंग नहीं करता। काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था पहले कि ये पार्सिंग करता होगा किसी चीज़ की। ये पार्स नहीं करता, ये एक URI का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है आपकी रिसोर्स को रेफर करने के लिए। और यहाँ पे हम ट्राई केस यूज़ कर लेते हैं ताकि कोई एक्सेप्शन अकर हो तो मैसेज आ जाए। यहाँ पे मैं क्लोज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं शो कर दूंगा एंड यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा मैं एक्टिविटी। एक्सप्लिसिट इंटेंट में पहले अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपने एक्टिविटी को डिफाइन किया हुआ है कि हमें सेकेंड एक्टिविटी पे जाना है। यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ पे एंड्रॉयड का OS जो है वो खुद ही उसको डिसाइड करेगा कि कहाँ लेके जाना है। तो वो URL है तो वो उसको ब्राउज़र में ओपन कर देगा, खुद ही उसके लिहाज से रिसीविंग कंपोनेंट डिफाइन कर लेता है। अगर कोई एक एक्टिविटी है जो उसको ओपन कर सकती है हमारी रिसोर्स को, तो वो डायरेक्ट हमारा एंड्रॉयड का OS उसको ओपन कर लेता है। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, लाइक जैसे आप कोई चीज़ शेयर करते हो तो आपके पास एक पॉपअप अपेयर होता है कि आप
व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हो, जीमेल पे या किस पे, तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास पॉपअप अपेयर होता है और हम उससे ऐप सेलेक्ट करते हैं। अगर एक ही कंपोनेंट आपका वो शो कर सकता है तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हम इम्प्लिसिट इंटेंट के ज़रिए डायलर भी खोलेंगे। अब ये डायलर हमारे पास डायल पैड है। मैं URI का ऑब्जेक्ट अलग से बना लेता हूँ। अजान हो रही है तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये एक्शन अंडरस्कोर व्यू नहीं होगा, ये होगा डायल। मैं आपको बाकी एक्शंस दिखा सकता हूँ। ये देखें, अंडरस्कोर सेंड, स्क्रीन ऑन, शो एप इन्फो। हमारे पास काफ़ी किस्म के यहाँ पे एक्शंस हैं। बैटरी लो, बैटरी ओके। तो जितने भी एक्शंस आप चाहो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सब तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते, लेकिन दो को हमने इम्प्लीमेंट किया है। लोकेशन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमें फ़ोन नंबर को डायलर पैड में खोलना है तो हमारे लिए उसके लिए एक्शन होगा एक्शन अंडरस्कोर डायल। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, हमें ये TEL लिखना होता है। ये डेटा स्कीम्स होती हैं जो बताती हैं कि विच ऐप टू ओपन। अगर यहाँ पे मैं जियो लिख दूँ तो यानी कि ये मैप की एप्लीकेशंस को ओपन करेगा। ये डायलर को ओपन कर देगा और उसमें हमारे पास वो फ़ोन नंबर लिखाएगा। तो जब रन करेंगे तो इन दोनों का आउटपुट हम देखेंगे और अगर कोई एरर अक्कर होता है तो यहाँ पे ये टोस्ट होगा। तो लॉग का एक और यूज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे log.e करके एरर नाम से की देके और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। जब भी आपकी ऐप में एरर्स आ रहे होते हैं तो आपको अगर जानना है कौन से एरर्स हैं या क्या चीज़ें हैं, तो आप ऐसे करके वो लॉग यूज़ करके
फिर आप लोग कैट विंडो में देख सकते हो कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, तो फिर आप उस हिसाब से उसको ठीक करते हो। देन इनका काम ख़त्म हो जाता है और आप इनको अपनी ऐप से रिमूव कर देते हो। और उसके बाद हमारे पास एक ओपन कैमरा नाम से बटन है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब हम ओपन कैमरा में क्या करेंगे, पहले परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे। अगर परमिशन अलाउ होगी तो तभी वो ओपन कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल होती है, इसमें हमें परमिशन को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे देखें कितनी सारी परमिशंस आपको शो हो रही हैं, एक्सेस फाइल लोकेशन, कोर्स लोकेशन, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। तो आप हर एक परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो जो भी चीज़ें आप अपनी ऐप में यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे फिलहाल कैमरा परमिशन यूज़ करेंगे, तो मैंने कैमरा परमिशन यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब वापस हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मेथड बनाए हुए लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए। अब यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे क्योंकि जो परमिशन से हमने स्लाइड्स में देखा था कि एंड्रॉयड 6.0 और उससे अबव वर्जन्स के लिए होती हैं। लेवल होता है 23। अगर 23 से ग्रेटर है तो तभी हम परमिशन चेक करेंगे। यहाँ फिर आप ओपन कैमरा। तो अगर 6.0 से कोई बिलो वर्जन है तो हम रन टाइम परमिशन को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट उसमें कैमरा ओपन कर देंगे। लेकिन अगर उससे अबव है तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक चेक परमिशन के नाम से एक मेथड बनाया हुआ है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक परमिशन है और एक रिक्वेस्ट कोड। अभी रिक्वेस्ट कोड क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब परमिशन चेक करनी है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, परमिशन कैमरा। तो परमिशन आपको चेक करनी है वो पास कर दी यहाँ पे, और रिक्वेस्ट कोड। कैमरा परमिशन कोड। अब ये कैमरा परमिशन कोड क्या 99 जिसको मैंने असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो। तो ये कोड होता है जो एक परमिशन को के साथ आप ऐसे समझें कि असाइन होता है। अब मैंने कैमरा के साथ असाइन किया 99। अब और मैं एक और परमिशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जैसे रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, तो उसको मैं कोई और नंबर असाइन कर दूंगा और इस रिक्वेस्ट कोड के ज़रिए मैं आइडेंटिफाई करूँगा उस परमिशन को। यानी कि मैंने 99 भेजा है और मुझे 99 ही रिसीव हो रहा है, तो यानी मेरे पास जो है कैमरा परमिशन का रिजल्ट आ रहा है। और मैं एक और परमिशन अगर इसमें डिफाइन कर दूं जैसे रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, उसका रिक्वेस्ट कोड मैं सेट कर लूँगा 80। तो मैं 80 से अगर रिक्वेस्ट कोड मुझे रिसीव होगा 80 तो यानी मेरे पास रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन चेक हो रही है। और अगर 99 तो यानी कि कैमरा परमिशन। तो मल्टीपल अगर परमिशंस होती हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये रिक्वेस्ट कोड पास करना होता है। तो यहाँ पे हम परमिशन को चेक करते हैं। अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट एक क्लास होती है जो आपके सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करती है, ड्रॉएबल्स, कलर्स, हर चीज़ें जो भी सारी आपके यहाँ पे दी हुई हैं इन सबको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो इस क्लास के ज़रिए। ये आप देख सकते हो कि सारे मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, गेट ड्रॉएबल, गेट कलर, अपने सारे रिसोर्सेज को गेट कर सकते हो। इसी का एक मेथड होता है चेक सेल्फ परमिशन। अगेन इसमें हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। कॉन्टेक्स्ट को आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता है, रिसीविंग इंटेंट या फिर ब्रॉडकास्टिंग, हर चीज़ में। और सेकंड यहाँ पे हम पास करेंगे अपनी परमिशन। यूज़र ने परमिशन डिनाई कर दी है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे परमिशन के लिए। एक बार लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ।
एक्टिविटी कॉम्पैक्ट हमारे पास एक क्लास होती है जो आपकी एक्टिविटी के अंदर जितने भी फीचर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं परमिशंस के लिए। अगेन यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और एक स्ट्रिंग की अरे पास करेंगे जिसमें हमारी परमिशंस रखी होंगी। तो परमिशन अरे के अंदर हमारे पास परमिशन है और यहाँ पे हम पास करेंगे अपना रिक्वेस्ट कोड। अब ये रिक्वेस्ट कोड कहाँ से आ रहा है, ये हमने यहाँ पे पास किया हुआ है 99 और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कोड ये हमने यहाँ पे गेट किया है और हम ये रिक्वेस्ट करें। अब ये मेथड क्या करेगा, ये वो मेथड है जो कि पॉपअप को अपीयर करेगा, वो जो एक्सेप्ट और डिनाई वाला हमारे पास पॉपअप आता है उसको ओपन करेगा और वहाँ पे यूज़र एक्सेप्ट या डिनाई करेगा। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट या डिनाई करता है तो वापस हमारे पास एक रिक्वेस्ट कोड आ रहा होता है। तो हम वो चेक करेंगे कि वो इक्वल है इस कैमरा परमिशन कोड के। तो अगर वो इक्वल होगा तो यानी हम वही परमिशन चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से हम मल्टीपल परमिशन अगर यूज़ करनी है तो हर एक का अलग रिक्वेस्ट कोड रखेंगे और उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे वो पॉपअप अपीयर होगा। अगर ये परमिशन डिनाई कर दिए तो हम वो पॉपअप अपीयर करेंगे। अगर डिनाइड के इक्वल नहीं है तो यानी कि परमिशन ग्रांट हो चुकी है। अगर परमिशन डिनाइड के इक्वल नहीं है तो मतलब परमिशन डिनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे हम टॉस शो कर सकते हैं परमिशन ग्रांटेड और यहाँ पे टॉस की ड्यूरेशन। और उसके बाद एक एक्टिविटी के अंदर हमारे पास ये ओवरराइडेड मेथड होता है ऑन रिक्वेस्ट परमिशंस रिजल्ट। अब जैसे ही यहाँ पे ये पॉपअप अपीयर होगा यूज़र से पूछने के लिए कि वो अलाउ कर रहा है उस रिसोर्स को या नहीं, जैसे ही वो एक्सेप्ट या डिनाई बटन को क्लिक करेगा तो जैसे ही वो क्लिक करेगा हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन यूज़र एक्सेप्ट और डिक्लाइन दी परमिशन रिक्वेस्ट कोड इज यूज टू चेक विच परमिशन कॉल्ड दिस फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट कोड के ज़रिए हम जानते हैं ये कि किस परमिशन को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे ये जो ओवरराइडेड मेथड है ये हमें रिक्वेस्ट कोड रिटर्न करता है और अरे ऑफ परमिशंस रिटर्न करता है और रिजल्ट्स रिटर्न करता है हमारे पास ग्रांट रिजल्ट्स की अरे। अगर ये रिक्वेस्ट कोड इक्वल है कैमरा परमिशन कोड के। अब अगर सपोज मेरे पास एक और कंडीशन होती रीड एक्सटर्नल स्टोरेज नाम से हमारे पास परमिशन होती और हम एक और वेरिएबल बनाते जैसे इसमें हमने 99 स्टोर किया उसमें हम 88 स्टोर करते। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस परमिशन को चेक करें और उसके एक्सेप्ट और डिक्लाइन का इवेंट यहाँ पे चेक करेंगे और अगर वो 99 के इक्वल होगा तो यानी हम कैमरा परमिशन को चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट कोड यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए और ये आप कोई भी नंबर इसको असाइन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 है यानी कि उसमें कोई एलिमेंट है। तो 0 इंडेक्स पे जो है वो लिखूँ फिर आपको समझाता हूँ दोबारा। अगर तो यूज़र क्लिक करता है एक्सेप्ट को तो हमारे पास इधर 0 इंडेक्स पे हमारे पास परमिशन थी, एक ही परमिशन हमने पास की है यहाँ पे स्ट्रिंग अरे में। परमिशन एक ही जो हमारे पास ये कैमरा परमिशन है।
अगर उसके जो रिजल्ट हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं ग्रांट रिजल्ट के अंदर उसके रिजल्ट रखे होते हैं, अगर वो ग्रांटेड के इक्वल हो जाता है, अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो परमिशन ग्रांटेड के इक्वल हो जाएगा, अगर डिनाई करेंगे तो वो एल्स में ये चल जाएगा हमारे पास परमिशन डिनाइड। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो टॉस ये हो जाएगा परमिशन ग्रांटेड, और अगर एल्स में मेरे पास हो जाएगा परमिशन डिनाइड। और ये मेथड तब कॉल होता है जब हम एक्सेप्ट या डिनाई को क्लिक करते हैं उस पॉपअप के अंदर। और ये एक्टिविटी कॉम्पेट क्लास हमारे पास हेल्पर होती है, एक हेल्पर क्लास होती है जो एक्टिविटी के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है। और ये कॉन्टेक्स्ट कॉम्पेट क्लास हमारे पास सारे रिसोर्सेज और क्लासेस जो भी हमारे पास होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए ये यूज़ होता है। तो अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। वकार, जब तक हम लोग रन करें, आई वांट के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमारा जो फीडबैक फॉर्म वी आर ड्रॉपिंग इन द चैट, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी कौन सी कहाँ गलतियाँ हैं। सो या एवरीवन प्लीज डू फिल इट। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस। तो देखिए हमने लाइन भी चेंज कर दी थी, तो ये सारे सेट भी हो गए एलिमेंट्स। और शो टॉस में हमने ग्रेविटी चेंज की थी सेंटर पे, तो वो भी शो हो रहा है हमारे पास सेंटर पे। अब देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास टॉस शो होगा प्लीज़ इंटर यूआरएल, हमने एक कंडीशन रखी थी। और यहाँ पे भी देखें शो हो रहा है प्लीज़ इंटर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मैं यूआरएल लिखता हूँ कोई भी। तो देखिए हमने ब्राउज़र कोई भी सेट नहीं किया था कि कौन से ब्राउज़र में ओपन हो, या फिर हमें ब्राउज़र ओपन करना है उसमें हमें यूआरएल चलानी है। हमने सिर्फ अपने एक्शन को लिखा था कि एक्शन_व्यू, और हमने उसमें यूआरएल पास की है, तो उसने खुद ही इस ब्राउज़र में ओपन कर दी है।
इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूंगा और ओपन डायलर को करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास नंबर लिखा आ जाएगा। इसके लिए हमने यूज़ किया था एक्शन अंडरस्कोर डायल और उसमें हमने नंबर पास किया था एक फॉर्मेट यूज़ करके TEL कोलन एंड देन हमने नंबर दिया था। इसी तरीके के बाद हमारे पास बहुत सारे एक्शन होते हैं, आप सबको चेक कर सकते हो। और एंड में हमारे पास ये ओपन कैमरा का मेथड है, बटन है। अब देखें ये वो पॉपअप है। अब सबसे पहले जब मैंने ओपन कैमरा को क्लिक किया तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। अगर 6.0 से अबव है तो वो परमिशन रिक्वेस्ट करेगा, वरना कैमरा को ओपन कर देगा। उसने परमिशन रिक्वेस्ट चेक परमिशन मेथड जो हमने बनाया था उसको कॉल किया, देन उसमें चेक करेगा। अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो रिक्वेस्ट करेगा परमिशन के लिए। अब उसने रिक्वेस्ट की और ये परमिशन हमारे पास पॉपअप हमारे पास अपेयर हो चुका है। अब मैं डिनाई करता हूँ तो ये देखिए लिखा रहा है परमिशन डिनाइड। अब जब मैंने डिनाई को क्लिक किया था तो वो हमारे पास जो रिक्वेस्ट परमिशन मेथड था वो एक ओवरराइडेड मेथड है। तो उसमें हमारे पास चेक हुआ पहले कि ग्रांड रिजल्ट, पहले रिक्वेस्ट कोड चेक होगा कैमरा परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है, और फिर उसके हमारे पास ग्रांड रिजल्ट चेक होंगे, उसमें परमिशन ग्रांटेड के वो इक्वल नहीं हुआ होगा, देन हमारे पास ये टॉस होगा हो गया कि परमिशन डिनाइड। अब मैं अगर अलाउ को करूँगा तो परमिशन ग्रांटेड। अब अगेन हमें परमिशन देनी नहीं पड़ेगी, परमिशन ग्रांटेड शो हो रहा है। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है यहाँ पे। मैंने इस ओपन कैमरा मेथड को कॉल नहीं किया है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उसमें दिखा देता हूँ, तो आप ट्राई कर लेना। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एल्स में मैंने टॉस शो किया, परमिशन ग्रांटेड जो वहाँ पे शो हो गया था। यहाँ पे आपको एक और मेथड कॉल करना है ओपन कैमरा, और इसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं दिखाई। फीडबैक फॉर्म के बारे में बात हो रही तो मैंने एक कोड लिख लिया था, तो इसमें भी आप एक इंटेंट बनाओगे और यहाँ पे आप इमेज अंडरस्कोर कैप्चर के नाम से देख सकते हो। एक्शन मीडिया के अंदर, एक्शन के अंदर ये मौजूद होता है, और जैसे ही आप स्टार्ट एक्टिविटी करोगे तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास परमिशंस काम करती हैं। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे वो आपके पास कैमरा ओपन नहीं करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे ओपन कैमरा कॉल कर दिया, अब ये कैमरा को ओपन कर देगा। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगेन हम फिर स्क्रीन शेयर यहाँ से बंद करके वहाँ से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये मैंने स्लाइड्स में यहाँ पे लिंक्स भी डाल दिए। अगर आपको बाद में कुछ पूछना हो या किसी को हेल्प लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। Okay, anyone has any question then पूछ लें. Okay, we are thankful for your contribution toward TSC Mute as being a valuable speaker. Mr. Vakar, we are glad to have you with us. Okay, over to you, Fatma. Okay, so guys, thank you so much, Vakar. This brings us to the end of the session, and we are now waiting for the participants who are going to be presented in the quiz. Quiz की मीटिंग लिंक मैं आपको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग चैट में। आप लोग क्विकली उस सेशन में आए जिन्होंने RSVP फिल की थी, रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन. So yeah, see you all there, quiz participants.